وفاق اور سندھ میں تناؤ، آصف علی زرداری کی انٹری۔ حکمران پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنے کے خواہش مند۔ وزیر اعظم عمران خان مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت کرونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے، سابق صدر بھی بول پڑے۔ کورونا کا پھیلاؤ تیز، پہلی بار ایک ہی دن میں 2255 نئے کیسز۔ متاثرین کی کل تعداد 34,336 ہو گئی، مزید 31 شہری جاں بحق، اب تک 737 اموات۔ پنجاب 13,225، سندھ 12,610، خیبر پختونخوا 5,021 اور بلوچستان میں 2,158 مریض، 8,812 افراد صحت یاب۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی بازاروں میں کھڑکی توڑ رش، دھڑا دھڑ عید شاپنگ، ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز کا استعمال نہ ہونے کے برابر۔ اسلام آباد میں شہریوں نے حفاظتی تدابیر ہوا میں اڑا دی۔ اچھا تو لگ رہا ہے کہ وہ عید کا پتہ چلے کہ عید بھی ہے، تو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمیں گھر میں رہ کے۔ اتنے عرصے سے دکانیں بند ہیں، ہم لوگوں کو بہت تھا کہ ہم لوگ شاپنگ کریں، اور جب شاپنگ مالز کھلے ہیں تو ہم بہت خوش ہو رہے ہیں۔ نکلنے سے پہلے بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ نکلیں یا نکلیں، لیکن ظاہر اب ضرورت کی چیزیں ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے، تو ان کی بہت ڈیمانڈ ہے، اس کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ کاروبار کی اجازت ملتے ہی من مانیاں، پشاور میں شہریوں اور دکانداروں نے SOPs پسے پش ڈال دیے۔ بازاروں میں رش، سڑکوں پر لمبی قطاریں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے والے بھی پریشان، حکومت سے سخت فیصلے کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد، کورونا سے پیدا شدہ صورتحال پر بحث جاری رہے گی۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازم۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد۔ وزیر اعظم معاشی ریلیف پیکج پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ کم قیمتوں پر تیل خریدنے کی سمری بھی زیر غور آئے گی۔ مشکل کی گھڑی میں متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے عوام کا جذبہ قابل تحسین۔ فنڈ انتہائی شفاف انداز سے حقداروں تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوبائی وزیر یاسر ہمایوں سے ملاقات میں گفتگو۔ لاک ڈاؤن میں کمی کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کورونا پر قابو پا لیا۔ SOPs پر عمل نہ ہوا تو حکومت سخت ترین اقدامات کا آپشن استعمال کر سکتی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی خبردار کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر سندھ اور سینیٹر مرزا محمد آفریدی کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ اسد قیصر کا والد کے نام سے فاؤنڈیشن بنانے کا فیصلہ۔ عمران اسماعیل نے اپنا پلازما عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات میں پیش رفت، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آج بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ تمام فیصلے ملکی مفاد اور کاشتکاروں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کیے گئے۔ عثمان بزدار نے فیکٹ شیٹ مرتب کر لی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، نیب نے خورشید شاہ کے اہل خانہ کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جیال رہنما کی 2 بیویوں، بیٹے اور بھتیجے کی ضمانت کا فیصلہ چیلنج۔ شہر قائد میں ترقیاتی کام، ناقص منصوبہ بندی اور مبینہ کرپشن کی نظر۔ شہید ملت روڈ پر انڈر پاسز کی سڑک افتتاح کے 4 ماہ بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ غیر معیاری کام پر سندھ سرکار بھی پریشان، تحقیقات کا آغاز۔
एलएनजी केस से मुतालिक शाहिद खाकान अब्बासी कल नैब दफ्तर में तलब कर लिए गए हैं। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला शाहिद को भी कल तलब कर लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को एलएनजी ज़िमनी रेफरेंस में बयान के लिए तलब किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के दौर में वजीर आजम के तौर पर काम करते रहे हैं, 59 रोज वो नैब की हिरासत में पहले रह चुके हैं और एक केस में इस वक्त वो जमानत के ऊपर हैं, जबकि एलएनजी केस में दोबारा से शाहिद खाकान अब्बासी को कल नैब के दफ्तर में तलब किया गया है। साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला शाहिद को भी नैब ने बुला लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, क्या बुनियादी इल्जामात हैं जिनकी तहकीकात होनी है? देखिए, एलएनजी केस में शाहिद खाकान अब्बासी पहले अबूरी रेफरेंस में गिरफ्तार हुए, उनसे तफ्तीश हुई, 59 रोज तक वो नैब की कस्टडी में रहे और उसके बाद उनकी जमानत पर रिहा हुए। अब नैब ने फैसला किया है कि एलएनजी केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नई एविडेंस आई है, नए शवाहिद आए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे के अकाउंट में 3 अरब रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई और ये उस वक्त की है जब शाहिद खाकान अब्बासी एलएनजी की जो एग्रीमेंट है वो साइन कर रहे थे। तो इस जो ट्रांजैक्शन हैं इनसे मुताल्लिक क्वेश्चन दिया जाएगा शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे अब्दुल्ला को, और इसके लिए उन्हें कल सुबह 11 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में तलब कर लिया गया है और ये कहा गया है कि वो अपने हमरा जो तमाम उनके पास रिकॉर्ड है अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का वो साथ लाएं। उन्हें कल सुबह नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। कल सुबह 11 बजे नैब रावलपिंडी ऑफिस में उन्हें पेश होने की हिदायत की गई है। आमिर सईद अब्बासी, आपका शुक्रिया। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जुमा कायरा का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की, कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी का कोरोना पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, हुक्मरानों ने मुल्क में मौजूद तमाम इत्तफ़ाक़ राय बर्बाद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज्यादा मुश्किल और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की जरूरत है। साबिक सदर का मज़ीद कहना था कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो मुल्क दहशतगर्दी और नफाक का शिकार था। हमने कौमी इत्तफ़ाक़ राय से आइन में तरमीम की और सूबों को हुकूक दिए। आज फिर हुक्मरान सूबों के आइनी और मालियाती इख्तियारात काम करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की सियासत की। पार्टी अहदेदारान और कारकुन कोरोना वबा में एहतियाती तदबीर के साथ अवाम की खिदमत जारी रखें। अभी खबर यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने खुर्शीद शाह के अहल खाना, सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब की जानिब से आमदन से जायद सजात केस में खुर्शीद शाह की 2 बेगमात समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद और सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों को नजरअंदाज किया। खुर्शीद शाह और उनके अहल खाना बैंक अकाउंट्स में मौजूद 84,000 अमरीकी डॉलर्स और 37 करोड़ से ज्यादा रुपए का हिसाब नहीं दे सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फैक्ट शीट भी तैयार कर ली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चीनी सब्सिडी स्कैंडल के मुतालिक कमीशन को तहरीरी बयान और उनके सवालात के जवाब भी देंगे। वज़ीर आला की फैक्ट शीट में कहा गया है कि फैसले कानून के मुताबिक और इज्तमाई मुशावरत के साथ किए गए। कोई फैसला फर्द वाहिद ने नहीं किया। तमाम फैसलों में मुल्की मफाद और काश्तकारों के मफाद को सामने रखा गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब गाड़ी से 2 बच्चों की 4 दिन पुरानी लाशें मिली हैं। इन बच्चों की शनाख्त 4 साला मोहम्मद जुबैर और 7 साला उबैद सईद के नाम से हो गई है। लॉकडाउन में नरमी के बायस कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं और पहली बार एक ही दिन में 2,255 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद पाकिस्तान में 34,336 हो गई है। पंजाब की बात करें तो 13,225 और सिंध में 12,610 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 737 हो गई है, जबकि 8,812 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं।
लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस में मजीद इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक एक ही दिन में सबसे ज्यादा 2255 रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद 34,336 हो गई। पंजाब में 13,225, सिंध 12,610, खैबर पख्तूनख्वा 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 759, गिलगित बल्तिस्तान 475 और आजाद कश्मीर में 88 केसेस हैं। 24 घंटों के दौरान 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 737 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 267 है, जबकि सिंध में 218, पंजाब 214, बलूचिस्तान 27, गिलगित बल्तिस्तान 4 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में 24 घंटों में 257 अफराद सेहतियाब हुए, जिसके बाद कुल तादाद 8,812 हो गई। पंजाब में 4,531, सिंध 2,229, खैबर पख्तूनख्वा में 1,305, बलूचिस्तान 256, गिलगित बल्तिस्तान 331 और इस्लामाबाद में 92 अफराद सेहतियाब हुए। आजाद कश्मीर में भी 68 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। अभी आपको अपडेट करते हैं। कोरोना वायरस का शिकार सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी सेहतियाब हो गए हैं। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कल सेनेट इजलास में शिरकत भी करेंगे। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 14 रोज से जायद आइसोलेशन में गुजारे हैं, तो यकीनी तौर पर यह अच्छी खबर है कि सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, अब उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है, क्योंकि सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है और कल जो सेनेट का इजलास होने जा रहा है उस इजलास में वो शरीक भी होंगे। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 14 रोज से जायद आइसोलेशन में गुजारे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची में कारोबारी सरगर्मियां तीसरे रोज भी जारी रही हैं। दुकानदार और शहरी SOPs नजरअंदाज कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुनिस अहमद। देखिए, बिल्कुल हुकूमत की इजाज़त के बाद शहर की बहुत सारी मार्केट्स हैं जो अब 9-10 बजे खुलना शुरू हो गई हैं, जो कि 12 और 1 बजे खुलती थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद मार्केट में। इंतहाई रश यहाँ पर मौजूद है, ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में है, दुकानें पूरी तरह खुल चुकी हैं। लेकिन जिन SOPs पर अमल करते हुए हुकूमत ने कहा था कि इजाज़त होगी मार्केट्स खुलने की, उन SOPs पर अमल हम ये कह सकते हैं 100% नहीं हो रहा है। कुछ दुकानदारों की जानिब से अपने तौर पे एहतियात की जा रही है, लेकिन मेजॉरिटी हम ये देख रहे हैं कि अक्सरियत दुकानदारों की उन्होंने सैनिटाइजर्स नहीं रखे हुए हैं, उन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। इसी तरीके से जो ख़वातीन की बड़ी तादाद है यहाँ पे ख़रीदारों की, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मास्क के बगैर हमें नज़र आ रही हैं, और जो कमिश्नर कराची है उनकी जो ज़ेर इंतज़ाम टीम है वो यहाँ पे नज़र नहीं आती कि लोगों को इस जानिब मुतवज्जा कर सके, या फिर कोई जुर्माने हो या फिर कोई उनसे पूछगछ हो। तो सूरत हाल यही है, 3 रोज़ हो चुके हैं आज मार्केट को खुले हुए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है और जो SOPs है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी। लाहौर की मार्केटें नए औकात कार के मुताबिक खोली जा रही हैं। ऐसे में अवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मार्केट्स में पहुंचने लगी। ताजिरों और ग्राहकों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद न होने की शिकायत भी आम है। मजीद जानते हैं अनारकली बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में जिस नरमी का ऐलान किया गया था उसके तहत आज तीसरे रोज़ भी लाहौर की मार्केटें खुली हैं। मार्केटों के लिए जो औकात कार दिए गए हैं सुबह 8 से 5 बजे तक दिए गए हैं, और ज़्यादातर वो मार्केटें जो कि तकरीबन 1.5 महीने से बंद थी। इन मार्केटों की जो सूरत नज़र आ रही है उसमें सुबह सवेरे ही शटर उठने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर ग्राहक और ताजर दोनों ही पहुँचने शुरू हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि ये आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन अब चूँकि गैर मामूली हालात हैं तो इनमें ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं कि लोग सुबह सुबह शॉपिंग के लिए पहुँच जाते हैं। मजमूई तौर पर जो मार्केटों की सूरत हाल है उसमें कहीं कहीं हमें जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनकी जानब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई नज़र आते हैं। सैनिटाइज़र भी नज़र आते हैं, मास्क भी नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर अभी तक एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस तमाम मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। ख़ासतौर पर जो ग्राहक आते हैं उनकी जानब से गैर संजीदगी ज़्यादा देखने में आती है। ताहम इसमें अभी बहुत संजीदगी की ज़रूरत है ताकि लोग ना सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि दूसरे भी महफूज रह सकें। जी।
कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल पेशावर में भी है, जहां पे शहरियों और दुकानदारों ने कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर को पसे पुश डाल दिया है और मुख्तलिफ बाजारों में रश देखा गया है। मजीद जान लेते हैं पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी और कारोबार की इजाज़त तो दे दी गई, ताहम शहरियों ने SOPs को नज़रअंदाज कर दिया। मुख्तलिफ बाजारों में एहतियाती तदाबीर के बगैर ही शहरी उमड़ आए। पेशावर के सदर, हशनगरी, मीना बाजार और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर बाजारों में शहरियों की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने वाले अफराद भी परेशान हो गए। कहते हैं हुकूमत सख्त फैसले करे। लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो तदाबीर होना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। आवाम जो है वो भी लापरवाह हुई है। दुकानदार जो है उनके पास भी ना सैनिटाइज़र है, ना उनके पास मास्क हैं, ना वो SOPs की जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वायलेशन की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में जहां खरीदारों का रश है, तो वही दुकानदारों की जानिब से भी कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए शहरियों का एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी है, जिसके लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।